Good evening, good friends. Today I am presenting to you a beautiful poem by William Shakespeare. It is Venus and Adonis. Venus and Adonis was written in 1593. It is said that it is the first published poem of William Shakespeare. The poem is dedicated to Henry Wriothesley. Henry Wriothesley was the third Earl of Southampton. He was called the Baron of Titchfield also. And William Shakespeare in the epigraph of this poem says that it is the first heir of an invention. When you think about the theme of this poem, but before this you should also know about its construction, its structure. Actually the poem is written in 6-line stanzas and its rhyming scheme is ABABCC. Now come to the theme of this poem. Venus belongs to heaven, she was a spirit, and Adonis belongs to earth. He is an earthly character, Venus is a divine character. Once she fell in love with Adonis, she came down to this earth and proposed to him. Thus they became the lovers. But the main hobby of Adonis was not love, rather he was fond of hunting. Every day he goes to hunt, and one day he was going on his hunting. But before this, Venus saw a dream. In a vision she saw that there was some calamity, some danger to the life of Adonis. So she tried to stop him from going to hunt, but he didn't stop. She tried most to persuade her from not going there, but he was not ready to listen to Venus. बहुत कोशिश की. She attempted to convince him how to avoid this calamitous time, but it was all in vain. Now, when Adonis went on hunting, he was killed by a boar. A wild pig is called boar. The same happened as it was expected. Venus became very sad, and in a sad mood she cursed love. She told that since then love would become full of fear, full of doubt, and full of sadness. There is a very famous quotation: false, fickle, false, and full of fraud. Venus became so much bereaved, so much disappointed that she confined herself to Paphos. Paphos is a city in Cyprus. So this is the theme of Venus and Adonis. एक बार हिंदी में, वीनस एंड एडोनिस सन 1593 में लिखी हुई विलियम शेक्सपियर की 5 ग्रेट पोएम्स में से एक है. यह पोएम अर्ल ऑफ साउथैम्पटन, जो थर्ड अर्ल ऑफ साउथैम्पटन थे, जिनका नाम था हेनरी रायथसले, उनको डेडिकेटेड है. अर्ल ऑफ साउथैम्पटन को बैरन ऑफ टिचफील्ड भी कहते थे. विलियम शेक्सपियर ने इस पोएम के एपिग्राफ में लिखा है कि इट इज़ द फर्स्ट एयर ऑफ माय इन्वेंशन. मेरी रचना या मेरे आविष्कार का पहला उत्तराधिकारी है ये. इस पोएम को विलियम शेक्सपियर ने 6-line स्टैंजाज में लिखा है और इसकी राइमिंग स्कीम है ABABCC. इसका विषय वस्तु क्या है कि, और एक बात ध्यान रखिए, इसका सोर्स भी है. वीनस एंड एडोनिस का सोर्स है ओविड का मेटामॉर्फोसिस. बहुत ध्यान से समझ लीजिए कि वीनस एंड एडोनिस का जब भी थीम पूछा जाए तो ओविड का मेटामॉर्फोसिस. विलियम शेक्सपियर ने ओविड का मेटामॉर्फोसिस पढ़ा होगा, उसमें स्टोरी बढ़िया लगी तो उस पर ये पोएम बना दी. अब होता यह है कि वीनस एंड एडोनिस में विलियम शेक्सपियर पर कुछ आरोप लगते हैं, कुछ ऑब्ससीनिटी है, कुछ फॉल्सहुड है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है. उस समय के हिसाब से हो सकता है, लेकिन आज के ज़माने के हिसाब से कोई ऐसी कमी नहीं इस पोएम में. कुछ कोटेशंस इसके देख लीजिए, हो सकता है ये पूछ दिए जाएं. तो कोटेशंस इस प्रकार हैं. पहला कोटेशन है 10 kisses short as one long as 20. 10 छोटी किसेस और एक बड़ी किस 20 के बराबर होगी.
ये वीनस एडोनिस से कहती है। फिर एक डिप्रेशन का कोटेशन है वीनस के बारे में, शेक्सपियर लिखते हैं कि सी हैज लव, सी लव्ड एंड सी इज नॉट लव्ड। उसके अंदर प्रेम है, वो प्रेम करती है, लेकिन उसको प्रेम नहीं किया जाता है। एक कोटेशन है, लव इज ए स्पिरिट ऑल कॉम्पैक्ट ऑफ फायर। प्रेम वो स्पिरिट है जो आग से भरी हुई है, बहुत जोश से भरी हुई है कहने मतलब। और एक कोटेशन बहुत इंटरेस्टिंग है, विलियम शेक्सपियर ने वीनस एंड एडोनिस में डाला है, टार्चेज आर मेड टू लाइट, जेवल्स टू वियर, डेंटीज टू टेस्ट, फ्रेश ब्यूटी फॉर यूज। यानी रोशनी, टार्चेज प्रकाश के लिए हैं, आभूषण पहनने के लिए हैं, और स्वादिष्ट भोजन खाने के लिए है, सुंदरता प्रेम करने के लिए है। इधर हंटिंग को लेकर के बहुत बड़ी दीवानगी थी वीनस के अंदर, एडोनिस के अंदर। एडोनिस कहता है, एडोनिस के बारे में विलियम शेक्सपियर कहता है, हंटिंग ही लव्ड बट लव ही लव्ड टू स्कॉर्न। हंटिंग पसंद थी उसे और लव पे हंसता था, नफरत से। व्हाट फॉलोज मोर सी मर्डर्स विद ए किस। वीनस अपने किस से ही मर्डर कर देती थी, जानलेवा किस थी वीनस की। फेयर फ्लावर्स दैट आर नॉट गेदर्ड इन देयर प्राइम रॉट एंड कंज्यूम देमसेल्व्स इन लिटिल टाइम। अच्छे फ्लावर्स अगर समय से उनका प्रयोग नहीं किया जाता है तो वो सड़ जाते हैं। यानी सुंदरता, यानी ब्यूटी को एंजॉय नहीं करोगे तो ब्यूटी रॉटन हो जाएगी, सड़ जाएगी। और एक वार्निंग देते हुए कोटेशन, वीनस कहती है एडोनिस, आर्ट दाउ ए वुमन सन एंड कैन नॉट फील व्हाट इट इज टू लव। वुमन के बेटे हो, तुम्हें नहीं पता प्रेम क्या होता है। और एक ये कोटेशन, स्पीक फेयर वर्ड्स और एल्स बी म्यूट। फेयर शब्द बोलो या फिर चुप रहो। फिर वो कहता है कि मुझे तो हंटिंग पे ही जाना है, पार्क में जाना है। तो क्या बोलती है वीनस, आई विल बी ए पार्क एंड दाउ शेल्ट बी माई डियर। मैं पार्क बन जाऊं, तुम डियर बन जाओ, और घूमो जितना घूमना है, भ्रमण करो मेरे प्रेम की भूल भुलैया में, प्रेम की नगरिया में। ही रिंग्स हर नोज, ही स्ट्राइक्स हर ऑन द चीक्स। और प्रेम करता चिढ़ता हुआ, इरिटेट है, जैसे एक तरीके से डिस्ट्रिक्ट लव करता है। कहीं नाक उसकी दबा देता है, कहीं चीख उसके थप्पड़ मार देता है कि बहुत प्यार की भूखी हो, बहुत प्रेम की भूखी हो। एक ये कोटेशन, लव इज ऑल ट्रूथ, लस्ट फुल ऑफ फोर्ड लाइज। लव सत्य है और लस्ट झूठा है। वासना जो है झूठ है, प्रेम सत्य है। और एक कोटेशन लास्ट में ये बता रहा हूं, दाउ शैल नॉट बी 1 मिनट इन एन आवर वेयर इन आई विल नॉट किस माई स्वीट लव्ड फ्लावर। सो दिस इज वीनस एंड एडोनिस. It is a narrative poem. Very attentively keep in your mind, it is a narrative poem because there is a story which has been maintained by the poet. There is a dialogue between Venus and Adonis, and we find the comments of the poet's opinions also. Once again, I remind you, Venus and Adonis is the first published poem of William Shakespeare. It was published in 1593. It is dedicated to Henry Wriothesley, means third Earl of Southampton, the same who was the Baron of Titchfield. Venus and Adonis is based on Ovid Metamorphoses. Venus and Adonis is written in 6-line stanzas. The rhyming scheme of Venus and Adonis is ABABCC. And William Shakespeare's statement about Venus and Adonis in the epigraph is first year of my invention. And another important and motivating line,
when Venus cursed love and said, fickle, false and full of fraud. And where did Venus go after the death of Adonis? जब एडोनिस की डेथ हो गई तो वीनस कहाँ चली गई थी? पैफोज को चली गई थी। पैफोज कहाँ है? साइप्रस में है। तो दिस इज ए वेरी रोमांटिक पोएम, ए नेचर पोएम by William Shakespeare. Keep it in your mind and share if it of course attracts your attention.